Yes. I pray in the name of the Lord our Lord Jesus Christ. I am grateful to God for this opportunity to be with you. मैं खुदावंद जिससे दिया मैं आप सब लोगों के दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं And I thank Pastor Gila and all the pastors that have helped him a successful life. Your voice is very low. Please wait up. I need voice. Now today is going to be our first class. But I'll tell you how we are going to run this class. Please wait just few seconds. Just few seconds. Please wait. Okay. Hello. Okay, sister, can you hear me now? Yes, I hear you. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. You are welcome to this leadership and church conference. Okay. We are going to divide this into 4 class sessions during your stay in the camp. Okay, let's start. We will have 4 class sessions. यहाँ बहन बता रही हैं कि कुछ सेशंस वो लेगी जिसमें तकरीबन 4 सेशंस होंगे The first session today is the responsibility of stewardship. आज का जो पहला सेक्शन है ये पासवान खादिम या शागिर्द की जो And then we will deal with the shepherd and the sheep. मैं एक चरवाहे और फिर भेड़ के मुतालिक आज आपके साथ बात करूंगी. Then the third one will be on another day, the wholesome or the complete word. और दूसरे दिन हम इससे आगे बढ़ेंगे और फिर हम और इसको गहरे तौर पे सीखेंगे. Then the last session will be the reward. और इसमें दर्जा बदर्जा हम और ज्यादा सीखेंगे. आज जो पहला सेशन है वो पासबान या खादिम या शागिर्द के ताल्लुक से होगा. I asked the people to come with pen and paper today. और जब आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं तो जरूर है कि आपके पास कागज पेंसिल या इस तरह की जो भी चीज है जिसपे हम उसको नोट कर सकें वो भी जरूर हो. Can I see the people? Sister, your voice is not coming. Because the thing is facing you. Can you please use hand free and
or some other mic? Because your voice is not clear, your video is very good, No, but your voice. people, I'm seeing the interpreter, but I am not seeing the people I'm speaking to. I don't know what is happening. Your camera is on the interpreter, but the camera should be on the people. I don't know what is happening between, but your voice is not. कह रहे हैं कि मैंने लोग नजर नहीं आ रहे, मैं जिन्हें काम सुना रही है सारे उधर चले जाए सर इस साइड ते करा जंदे ते कैमरा तक उधर कर दियो आए कर जल्दी ये आओ जी ऐसे जाओ आके पहले सेटिंग अभी ये डाले तो देर से गिराना के बाद प्रॉब्लम कर दिएगा पहले इधर आ फोन करो जी ओ कैमरा किधर है शुरू कर देना ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ नहीं चल ठीक है ਉਹ ਫੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ओके आगे ठीक हो गया यस प्रेज लॉर्ड आपने तो किसी को हैंड फ्री है अपने हैंड फ्री पे रहते हैं आगे बात ऊंची थी जब पहले टेस्ट सी ना उसको बहुत बड़ी क्लियर थी आवाज ही लैपटॉप चलाया रीएंटिटी थी लैपटॉप थी नहीं वो पहले प्रोजेक्टर चेंज आगे बंद हो प्रोजेक्टर तब लगता था पहले लैपटॉप और फिर प्रोजेक्टर की हेलो एक गुलाब साहब गुलाब साहब कहने आज को पादरियां ले जाके ना कि उठे कर दो कुछ माइक देना जी कर दो सारा ऊपर हेलो Yes, now, yesterday, we asked ourselves the question, who is a student? Because I want to make sure that the people I'm speaking to are following. कल हमने ये बात की कि एक जो शहीद है एक पासबान है काबिल है वो क्या होता है कल जितने यहाँ पे मौजूद थे मेरे ख्याल में उन्होंने इसके बारे में सीखा होगा Please, can anybody tell me who is a steward? आप में से कोई बता सकता है कि एक शहीद जो है वो कौन होता है जी obedient some of them said obedient someone who is learning Okay, now we're going to briefly go through what we did yesterday, because yesterday everybody was tired after the journey. आज हम इसको कुछ तफसील के साथ सीखेंगे क्योंकि कल का दिन मैं भी जानती हूँ आप में से बहुत सारे थके हुए थे हालांकि आज भी सारे थके हुए हैं Now, a steward has 4 meanings. एक जो शागिर्द है उसको कहते हैं जो मुकम्मल तौर पे अपने उस्ताद के ताबे होता है The first meaning is somebody who has been employed to look after passengers on a ship, on a train, or in a plane, like an aircraft. ये इस तरह है कि जैसे एक जो शहीद है वो किसी ऐसे उस्ताद के पास आए जो उसे चीज सारे की महारत देता है जैसे कि एक पायलट बनने के लिए किसी के पास आप बतौर सीखने के लिए जाते हैं और वो आपको सारी महारत सिखाता है In the second meaning, a steward is somebody who is responsible to supply food to a college or a club, like a social club, or any kind of institution. So he supplies food. उसका जो इसका मतलब हो ये है शागिर्द उसे कहते हैं तो मुकम्मल तौर पे किसी इदारे में जाता है तो वहाँ इदारे से
बाकायदा तौर पे सीखता है, हम उसे शागिर्द कहते हैं। In the third meaning, a steward supervises every arrangement in a large public gathering. For example, I give an example of football. Somebody in that capacity of a steward will supervise all the arrangements and make sure as well that everything is orderly and safe. ये इस तरह ही है कि जिस तरह एक जो शख्स है उसकी जिम्मेदारी हो कि उसने एक ग्राउंड में सारे अरेंजमेंट्स करने हैं और वो करता है, ये भी इसी तरह है शागिर्द के जिम्मे कि जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो उसको पूरे तौर पर निभाता है, वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरे तौर पे सरअंजाम देता है। In the last meaning of a steward, he is somebody who looks after another person's building or property. और ये इस तरह ही है शागिर्द का जो आखिरी मतलब है कि जिस तरह वो बिल्कुल किसी चीज के पीछे इस तरह रहता है कि जैसे वो उसके नाम पे है और ये उसने करना है और उसने वो सारी खिदमत सरअंजाम देनी है। So you see that a steward has responsibility over people. Second, he supplies food. और ये इस तरह है कि पूरी तौर पे जिम्मेदारी लेना और फिर फूड जो है जो खुराक है वो भी अन्य जो जरूरतमंद है उसके पूरे तौर पे मुहैया कर देना। Thirdly, he supervises events for a large public gathering. और इसका तीसरा हमने देखा कि वो जितने इवेंट्स हो रहे हैं तो सुपरवाइज करना उसका काम है कि जो कुछ हो रहा है वो सारा उस नजर में हो कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करना है। And number 4, after somebody's building or property. और ये इस तरह ही है कि जिस तरह आप किसी की प्रॉपर्टी मलकियत में है और वो जो मलकियत है उसकी सारी जिम्मेदारियां सरअंजाम देना। Now we're going to look at number 4. We're going to read the book of 1 Peter chapter 2, verses 5 to 9. और ये इसी तरह ही है जो कुछ आपके जिम्मे लगा दिया जाता है आपने फिर पूरे तौर पे वो सब कुछ करना है। Now, if you are not writing anything down, make sure you get the video and study it, because this is the foundation of this kind of meeting. और ये इसी तरह ही है कि जैसे ये सारी असाइनमेंट के तौर पे आपको दी जाए और आप अगर इसके काबिल हैं कर सकते हैं तो फिर ही आप कह सकते हैं कि हाँ मैं शागिर्द हूँ। So 1 Peter chapter 2, verse 5 to 9. पहला पत्रस उसका दूसरा भाग उसकी 5वीं से 9वीं आयत। So the Bible said that you are like lively stones, like stones that are alive, made alive, but you are built into a spiritual house. और बाइबल मुकद्दस पहला पत्रस दूसरा भाग उसकी 5वीं आयत से ग्रंथ लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। And in this spiritual house, Jesus Christ is the foundation stone. और जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती है, ये एक तरह की सारी आप इसको पढ़ सकते हैं कि तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि कायदों का मुकद्दस फिरका बन के ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। And the Bible calls you here a chosen generation. That means a people that chose himself, not pick you out of the crowd. और आगे लिखा है, चुनांचे किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ। And the Bible said that you are like priests that come from a line of royalty. और बाइबल मुकद्दस ही कहती है कि कोने के सिरे का चुना हुआ
और कीमती पत्थर मैं रखता हूँ। The Bible calls you a holy nation. That God has set you apart. और बाइबल मुकद्दस जो है वो मुकद्दस कौम की तरफ इशारा करती है कि मुकद्दस कौम की बुनियाद रखी जाए, लोग मुकद्दस बने, लोग कामियत की तरफ रास्तबाजी की तरफ जाए। And the word again says that you are a peculiar people. That means you are special and unusual people. और बाइबल मुकद्दस भी कहती है बस तो ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती है, मगर ईमान न लाने वालों के लिए जिस पत्थर को हमारों ने रद्द किया वही सोने के का पत्थर हो गया। And there is a reason why you are in the house of God, in the building of God, in the spiritual house of God. और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों आप खुदा के घर में हैं, क्यों आप मुकद्दस हैकल में हैं, क्यों आपको खुदा के घर में रखा गया है। Why? To show the praises of Him, which is Jesus Christ, who has called you out of darkness into His marvelous light. ये इसलिए है ताकि आप उसकी हमको सिफारिश करें, क्योंकि उसने आपको अपने बेटे यीशु के वसीला से तारीकी से निकाल के वो आपको रोशनी में लाया है। This is why the Bible calls you God. That is in 1 Corinthians 3, in the Bible, you must know that you are the temple of God and that the Spirit of God is इसीलिए बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम आपको ये कह के मुखातिब करती है, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। So, as a steward, you are taking care of God's building, and God's building is made of human beings. खुदा के शागिर्द होते हुए, खुदा के खादिम होते हुए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी इस खूबी को जाने जो खुदा ने आपको दी है, जिसके मतलब है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। God has a spiritual house, and that spiritual house is made of living stones. और खुदा का जो रूहानी घर है, जिसके मतलब है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप उसका रूहानी घर हैं। Where Jesus is the foundation stone. और जो यीशु मसीह है वो कोने के सिरे का पत्थर है। So now, in the top, we see usage of order at such Sorry, please repeat again. that part of the job of a steward is to keep order in a large public gathering. You make sure that going well. ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ तो भी उनने नेटवर्क का इशू है इस पर सारी चल गया सी पहले दो तीन बार ही हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ नहीं करते And your Hebrews 12:23. इब्रानियों 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। Hebrews 12:23. आए हम कलाम खुदा में से मुकद्दस पौलुस रसूल का हटाने के नाम पहली और दूसरी आयत। बस जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है।
और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। Amen. Praise God. So now, I want to talk to you about the public gathering of God. We have already spoken about the building of God, but now the public gathering of God, which is part of your work as a steward. आए हम एक मुख्तार होने के नाते से, जो हमारा आज का जो मौजू है कि एक मुख्तार क्या है, एक ऐसा शख्स जिसको इख्तियार दिया गया है, और हम भी इंतजामिया है, मुनज़्ज़म है खुदा के उस इंतजाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। और खुदा का जो घर है, उसकी जो इंतजामिया, जो हम लोग हैं, जो खादिम लोग हैं, हम लोग देखें कि खुदा का घर क्या है, खुदा अपने घर को कैसे देखता है। Now, the public gathering of God is in a spiritual location called Mount Zion. और खुदा की हजूरी उसके मुकद्दस लोगों में है, और वो मुकद्दस लोगों को वो कोहे सहून से तशबीह देता है। सब कहें आमीन। That place is also called City of the Living God. This is where you are spiritually, even though you are sitting there, but that is where you are spiritually. और हता के वसूल लेने वालों को भी खुदा ने बुलाया ताकि वो उसकी खिदमत कर सके। ये खुदा के घर की खूबी है कि खुदा हर एक को बुलाता है कि हम उसके घर का इंतजाम करें, उसके मुख्तार हों। आमीन। आए हम खुदा के लिए एक दफा तालियां बजाएंगे ताकि जो हमारी एक है वो खत्म हो। Now, the Bible calls that place the heavenly Jerusalem. और खुदा जिंदा कलीसिया को आसमानी यरूशलेम कहता है। आमीन। And that place there is a general assembly. That means the first people that have been, the people that have received Jesus Christ, that place is called the general assembly. In that place, you are not alone where you are sitting, but you are in a group, in a spiritual realm called the assembly of the firstborn. अकेले जब हम होते हैं तो हम खुदा का बदन नहीं है। जब हम सब यकसा हैं, तब हम मुत्तफिक हैं और रूहानी आलम में एक है, तब हम उस नई यरूशलेम के वासी, उसके बशिंदे, और रूहानी आलम में हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, एक जमात बनते हैं। हालेलुया। It is called the church of the firstborn because there was a church in the wilderness. In the Old Testament, there was a church, but they could not come into perfection until we became born again, until Jesus came and died. लोगों के रूहानी इज्तिमा को हम कलीसिया कहते हैं। पुराने एहतनामे में भी कलीसिया थी, मगर हमने उसको बाकायदा तौर पर कलीसिया का नाम नहीं दिया था। Now, in this general assembly, every member is a citizen of heaven. So every in this group or this is a citizen of they have the passport of heaven. और कलीसियाई इस जमात में हर एक शख्स नाज़िम है, हर एक शख्स मुख्तार है, और वो इस बात का जिम्मेदार है कि मसीह का बदन जो कलीसिया है वो
हम आहंग रहे और आसानी से मोहब्बत में और सुकून से रहे। आमीन। Now, in this assembly, somebody is also there. The Bible calls God the judge of all. So God is there in this assembly. और आज ये कलीसिया, जो जिंदा कलीसिया आज हम बैठे हैं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिनको खुदा ने बुलाया है और खुदा आप में बसता है, आज खुदा आपको छूना चाहता है, खुदा आपको मुख्तार बनाना चाहता है, खुदा आज आपको एक नाज़िल बनाना चाहता है। आमीन। Then after that, there is another important group. The Bible calls them priests of justice that were made. Your voice is breaking up. What is the second characteristic? The Bible calls this other group the spirits of just men, righteous men that were made perfect. और एक दूसरा ग्रुप भी है, एक दूसरे लोगों की जमात भी है, जिसे खुदा रास्तबाजी का रूह अता करता है। This is a company of departed saints who are now in their glorified bodies. Who are not? This is the company of departed saints. That means people that have people like Abraham, Isaac, Moses, Enoch. और इब्राहिम, इसहाक और हनूक की तरह के लोग भी मौजूद हैं, जो दूसरे ग्रुप में आते हैं, जिन्हें खुदा का रूह बसता है और खुदा उनको अपने जलाल के लिए, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। You need to know everybody that is in this group so that you know who you are and so that you can serve God with respect. आपको इन तमाम ग्रुपों को जानने की जरूरत है, ताकि आपको पता चले कि आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं। अगर आपको पता चले कि आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होगा। आमीन। Now, in this place again, the Bible said that we have Jesus there, Jesus, the mediator of the new covenant. और फिर हम यीशु मसीह के बारे में जानते सीखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नए अहदनामे का दरमियानी है। आमीन। And then the last entity in this place is the blood of Jesus Christ, the blood that speaks, that cannot keep quiet, because the blood of Jesus Christ is speaking and speaking up to today. और एक और चीज के बारे में हम सीखेंगे, वो है मसीह यीशु का लहू। और मसीह यीशु का लहू बोलता है और वो हमें निजात देता है, वो हमें बचाता, छुड़ाता और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है, लानतों से छुड़ाता है, कुव्वत में दाखिल करता है। आए हम मसीह के लहू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। Because this wonderful blood of Jesus Christ, even though he was crucified, he was killed by unjust, unrighteous men, but still he does not speak vengeance. That blood speaks better than the blood of heaven. क्योंकि ये हैरान कुल बहा लहू जो हमारी निजात का वसीला है, वो एक गुनहगार की तरह मसलूब किया गया, लेकिन फिर भी वो हम सब के लिए हमेशा की जिंदगी बना और उसने हमारे लिए हमेशा हमेशा की जिंदगी खरीद ली। आमीन। ये खुशी की गल है सारे बड़े। आमीन। As a child of God and as a steward, you are never alone. खुदा के बेटे और बेटी होते हुए, एक मुख्तार होते हुए, एक नाज़िम होते हुए, आप अकेले नहीं हैं। आमीन। आमीन। You are always in a large assembly
of people where you have believers in Christ who are living on this earth, where you have people, believers who have already died, where you have Jesus Christ, where you have God, where you have angels, and where you have the blood of Jesus. और आप उस जमात का हिस्सा हैं जिनके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, जिस जमात के लिए खुदा ने हमेशा की जिंदगी रखी, जिस जमात को खुदा अपने बेटा और बेटी बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। So I want you to see yourself for who you are. You are living in two places at the same time. You are living in this world of ours, in the physical world, and at the same time, you are living in the spiritual realm. You are in two places at the same time. आप एक वक्त में दो जगह पर हैं। इंसान होते हुए आप इंसानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए आप एक रूहानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस मकाम पर देखते हैं। Because of your flesh, because of your physical body, that's why you are here. But actually, you are not here. You are actually in the heavenly realm. God. जिस्मानी जिंदगी होते हुए, एक जिस्म रखते हुए आप जमीन पर तो हैं, लेकिन आप जमीनी नहीं हैं, आप आसमानी शहर का हिस्सा हैं, आप खुदा के शहर के लोग हैं, आप आसमानी लोग हैं। अपने लिए भी एक बार जोर से तालियां बजा लें। खुदा ने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया और आपको आसमानी मकामों पर दर्जा दिया। Hallelujah. Hallelujah. You see, but in this place where you are in the spirit realm, God has given you the assignment of इस जिस्मानी जिंदगी में रहते हुए खुदा ने आपको एक मकसद दिया है, एक असाइनमेंट, एक होमवर्क, एक काम दिया है। So all the people that are gathered in Mount Zion, your job is to take care of them. आप सब लोग जो कोहे सहून पर जो जमा है, जो खुदा के घर में आप लोग जो जमा हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सब एक दूसरे का ख्याल रखें। आमीन। And when you are taking care of them, God is watching you. The angels are there watching you. Jesus is there. And Abraham, Isaac, because they are all together in the heavenly realm. और आप जब एक दूसरे का ख्याल रखे हुए हैं तो खुदा आपको देख रहा है, खुदा के फरिश्ते आपको देख रहे हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब और हनूक जैसे बड़े-बड़े लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि हम सब रूहानी आलम में एक हैं। हालेलुया। Praise God. So now I want to ask you, and Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. I want to say that everything you do on earth, you witness, people are watching. आप जो कुछ भी यहाँ जमीन पर कर रहे हैं, खुदा आपको देख रहा है और रूहानी आलम में तमाम अंबिया, कराम, फरिश्ते और खुदा के मुकद्दसीन आपको देख रहे हैं। So मेरा आपसे एक सवाल है। If you could repeat the question again, please, because there was a breaking. So what is the question, please? Hebrews, the book of Hebrews, chapter 1, 12, verses 1 and 2. Hebrews 12, 1 and 2. Okay. आए मुकद्दस पौलुस रसूल का खात इब्रानियों के नाम 12 बाब उसकी पहली से दूसरी आयत पर गौर करें फिर से। और सबके गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है
तो आओ हम भी एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। So you can see the Bible is saying that you are surrounded by many witnesses. It's like a surrounded crowd, a spiritual crowd of अभी हमने पढ़ा है कि एक बड़ा ग्रोह जो है वो बादलों की तरह हमें घेरे हुए है। गवाह जो है वो हमें एक बादल की तरह इर्द गिर्द से घेरे हुए हैं। So the Bible is saying, since we have so many people that are watching us from the spiritual realm as we are walking, let us remove everything that we और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सारे अंबिया कराम, सारे मुकद्दसीन आपको रूहानी आलम में देख रहे हैं। And then let us run this because let us vengeance and looking to Jesus, who is the beginner, the person that has formed our life and finish it, who will perfect our life. जबकि हमें गवाहों का एक बादल भी घेरे हुए हैं, रूहानी आलम में हमें मुकद्दसीन भी देख रहे हैं और खुदा भी देख रहा है, तो आए एक अमल करें। अमल ये करें कि हम यीशु मसीह को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, पूरी सारी अकल से हम उसको कबूल करें और उसकी फरमाबरदारी करें। आमीन। Now we said in number 2 point that a steward supplies food. Now you are to feed the flock of God. अब मैं अपने असल मौजू पर आती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आप कौन सा ग्रुप है। क्या आप उन मुकद्दसीन और आप उन अंबिया कराम में शामिल हैं या आप एक नाज़िम या एक मुख्तार के ग्रोह में शामिल हैं। Can we read from 1 Peter chapter 5 verse 2-4? आए मुकद्दस पत्रस 5 बाब उसकी दूसरी से चौथी आयत पर गौर करें कि खुदा मुकद्दस पत्रस का पहला खत 5 बाब 2 से 4 आयत। Should I read it, please? 1 Peter 5 verses 4. That's the first epistle of Peter chapter 5. के खुदा के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफे के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर अपनी हुकूमत ना जताओ बल्कि गला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। Now you see, this is a command from God. It's a command. He says, feed the flock. That means feed the spirit of God. और ये खुदा का एक हुक्म है। ये खुदा ने आपको कोई एक फर्ज नहीं कहा बल्कि ये खुदा ने आपको एक हुक्म दिया है जो आपने करना ही है। आमीन। Amen. You see, as a steward, you are an employee of God. That means that God has employed you into a job. और खुदा ने आपको एक काम सौंपा है। गौर से आपने गौर करना है। And now, person who employs that God,
feed the flock, the sheep of God. आपने अपने खुदा के लोगों से प्यार करना है, खुदा के गला से, उसकी भेड़ों से प्यार करना है। आमीन। Manage the people of God. खुदा के लोगों का इंतजाम करना है। Not for dirty money, not for the gain of money. रुपए पैसा हासिल करने के लिए नहीं, but with a willing heart, with a ready heart. Bible says, be good example in humility. Be good आपको example. एक अच्छा नमूना बनना है और वो लोग जो आपके सुपुर्द किए गए हैं उनका ख्याल रखना है। आमीन। In the world, when people manage the world, they become like, no. When you manage God, you feel like someone. Yeah, come again, please. It's really very much disturbing. It was breaking up. Please come again. So, and the Bible says that when you will crown of If you could check your internet, please, because I think there is a problem on the internet side. my internet is super complete and Okay, please go on. okay. So, I was saying that in the world, when people are taking care, become like lords, like kings over them. But the Bible is saying, be like servants, लोग people of God. दुनिया के लोग क्या करते हैं कि जब उनको इंतजाम मिलता है, जब उनको मुख्तारी मिलती है, तो वो बादशाहों की तरह अमल करना शुरू करते हैं और अपने आप को बादशाह जाहिर करते हैं। जबकि खुदा के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो आजिज़ी, इंकिसारी और नहायत ही फरमाबरदारी से उनको साथ लेकर चलें। आमीन। Amen. And then when the chief shepherd, because you are a shepherd, you are taking care of the sheep of God. But the chief shepherd is just आप खुदा के लोग हैं और आप एक चरवाहे की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप गल्ला की जो निगहबानी है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करें। आमीन। so when the chief shepherd Jesus Christ was here, the Bible says he will receive a crown of glory, and this crown that he will give you will never fade away. और जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको जलाल का एक ऐसा सहरा मिलेगा जो कभी नहीं मुरझाएगा। आमीन। सब कहते हैं हालेलुया। We will be finishing in 5 minutes, so we're going to give the last point. The last point the Bible said, that we spoke about in the work of a steward is looking after passengers that travel. और एक मुख्तार की, एक नाज़िम की एक और खूबी के बारे में हम सीखेंगे कि एक नाज़िम, एक मुख्तार कैसा होना चाहिए। In the book of Philippians, chapter 2, verse 20, the Bible says, our citizenship is from heaven. कलाम खुदा में से हम देखेंगे, लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनस्सी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। आमीन। And then the Bible is saying that from there we are awaiting
our Savior. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम अपने मुनज्जी खुदावंद अपने नजात दहिंदा के मुंतज़िर हैं. आमीन. I want you to understand this. You are here on earth, but you are a citizen of heaven. But from heaven, not from the earth. The Bible said, from heaven, you are waiting for Savior. आप जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप जमीनी लोग नहीं, आप आसमानी लश्कर का हिस्सा हैं. सो हमारी ये जिम्मेदारी है, एक नाजिम की, एक मुख्तार की, एक खादिम की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुनज्जी खुदावंद मसीह का बेसब्री से इंतजार करता रहे. आमीन. The reason is that you are sitting here, but you are seated with Jesus Christ in the heavenly places, where the angels are, where God is, where the blood of sprinkling. You are watching from where you are. Heaven. और वजह यह है क्यों आपको इंतजार करना है, क्योंकि जब खुशी यीशु अपने पूरे जलाल, अपने सारे फरिश्तों और सारे मुकद्दसीन के लश्कर के साथ जब जमीन पर आएगा, तो वो आपको लेकर आसमानी मकामों पर जाएगा, जहां पे वो हमेशा हमेशा तक हम और बाप और सब मुकद्दसीन, सब फरिश्ते हमेशा हमेशा साथ रहेंगे. आए खुदा के इंतजाम पर, इसके जलाल के लिए जोरदार तालियां. Now we are going to read the last Bible verse for today, and that last Bible verse is Hebrews 11 verse 13. I want you to read that. Hebrews 11 verse 13. आए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 11 बाब और उसकी 13वीं आयत पर गौर करें. कलाम खुदा में यूं लिखा है, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाए, मगर दूर ही से उन्हें देख कर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं. आमीन. So you see, the Bible is talking about the old patriarchs like Abraham, Isaac, Jacob, Moses. They were in the old, they were looking and they were traveling. और इसका ये हिस्सा बयान करता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब और सब अंबिया कराम, जिनको ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा की बादशाही, उसके जलाल को देखें, लेकिन उन्होंने सिर्फ दूर ही से उसको देखते थे. आमीन. The promise of God was going to come through Jesus Christ the Messiah, but in their own time, to see that from far. They did not receive it at that time. They could see that from far. और जो निजात है, जो बादशाही है, खुदा का जो जलाल है, वो हमारे मसीह यीशु की वजह से, उसके जरिया से खुदा की बादशाही जमीन पर आई. और खुदा के जो दूसरे अंबिया कराम जो पुराने अहदनामा में थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा का जलाल देखें, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको दूर ही से देखा. आमीन. And they were convinced about what they could see, and they accepted the promise of God. और जो उनका ये यकीन था, उनका ईमान था कि वो मसीह यीशु के वसीला से एक दिन वो भी बादशाही को देखेंगे. आमीन. And one important thing in this verse is that the Bible said that they accepted, they confessed that they were pilgrims, they were travelers and strangers in this world. और इस आयत में एक बड़ी ही खूबसूरत बात की गई है कि उन्हें वो खुश थे और उन्होंने इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं. आमीन.
See, every person that have been born into this world is a traveler, is a stranger, just traveling, just passing through this world. हर एक वो शख्स जो जमीन पर आया है वो एक अजनबी है, वो एक मुसाफिर है, वो एक राहगीर है. So it is not a permanent space. You are looking after, who are on a journey. They are on a journey to a place. और एक मुख्तार, एक शागिर्द, एक खादिम, एक नाजिम होते हुए आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग आपके साथ सफर कर रहे हैं, जो लोग इस जिंदगी में आपका हिस्सा है, आप उनका ख्याल करें, उनको साथ लेकर चले और उनकी हिफाजत करें. आमीन. It is your duty after them. Give और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, आप उनकी फिक्र करें और जिस चीज की उनको जरूरत है वो आप उनको मुहैया करें. आमीन. Amen. I thank you for being here today. But I want to have very serious. और आज आप सबके आने का बहुत शुक्रिया. खुदावंद आपको बरकत दे. और आज मुझे उम्मीद है कि आपको बरकत मिली है. अगर बरकत मिली है तो आए खुदा की खातमा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. हम जोरदार तालियों में खुदा की खातमा का शुक्रिया अदा करेंगे. Sister, we are so much thankful to you for delivering a wonderful message, and the characteristics of Steve, these are so much important. So we are so much thankful to you. May the Lord be with you always. Thank you. Now, I want us to pray a prayer of dedication to God, because the only reason why you are a man of God, why you are a woman of God, why you are a worker in the church is because you are a steward. God has made you a steward. आए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे. आए दुआ करें, अपनी खिदमत को पहचाने. आप एक नाज़िम, एक मुख्तार, एक शागिर्द, एक खादिम होते हुए आप अपनी खिदमत को पहचाने कि आप कौन हैं. Ask yourself the question, how am I doing the work that God has assigned me to do? Am I a faithful steward? Am I looking after the house? आए अपने आप पर गौर करें, अपने आप से सवाल पूछें कि वो काम जो मेरे खुदा ने मुझे सौंपा है, वो जिम्मेदारी जो मेरे खुदा ने मुझे सौंपी है, क्या मैं वाकई एक अच्छा मुख्तार हूँ? क्या मैं एक अच्छा शागिर्द हूँ? क्या मैं एक अच्छा खादिम हूँ? अपने आप से सवाल पूछें. Am I there for the money, or am I there for the fame so that people will know me and respect me? Why am I here? अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं रुपए पैसे के लिए खिदमत कर रहा हूँ? क्या मैं कुव्वत के लिए खिदमत कर रहा हूँ? क्या मैं अपने शोहरत के लिए खिदमत कर रहा हूँ? आज वक्त है कि अपने आप से सवाल पूछें. God will judge the intents of the heart. He will judge the motives, and only the faithful receive the reward. खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है. खुदा हमें जानता है, इसलिए हमें खुदा के सामने इकरार करना है. जो कुछ भी आपके दिल में है, आप अपने दिल को खोलें और खुदा से इकरार करें. Father, I commit your children, your people, your servants, your stewards into your hand. ऐ खुदा, मैं तेरे खादमीन को, ऐ खुदावंद इन लोगों को, तेरे शागिर्दों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ. Father, I ask that they receive the true wisdom that comes from the Spirit of God. ऐ खुदा, मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ कि इन पर अपनी हकीकी हिकमत को अनभेल दे. Father, Amen.
of them faithful stewards of the gospel of Jesus Christ. ऐ खुदा अपने इन खादमीन को, इन नाज़िमों को, इन मुख्तारों को छू ले ऐ खुदा, अपनी कुव्वत से भर दे ऐ खुदा। I ask for angelic assistance in their life in the mighty name of Jesus Christ. ऐ खुदा, मैं इनकी जिंदगियों में फरिश्तों के पहरों को और फरिश्तों की मदद को मांगती हूँ। Thank you, Father. In Jesus' name we pray. मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ और ये सब कुछ मांगती हूँ अपने प्यारे मसीह यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कुव्वत वाले नाम में। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। Okay. Thank you, sister. जी, जोरदार तालियों में और वेव के साथ Thank you, sister, for wonderful message. Okay. Tomorrow I will see you again and for the word of God. Thank you. God bless you.